person called Saul. एक दिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था साउल, And he wanted to become a king in Israel. और राजा का, और इजराइल का वो राजा बनना You चाहता know, था. in 1 Samuel chapter 9 verse 20, the Bible says, बाइबल कहता है कि पहला सामुएल का 9:20 में, but as for your donkeys that were lost 3 days ago, do not be anxious about them. Samuel is telling Saul, for they have been found, and on whom is all the desire of Israel. Is it not on you and on all your father's house? और तेरे गधियों जो 3 दिन हुए खो गए थे, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वह मिल गए. और इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? Now Samuel is telling this to Saul, who is searching for his donkey. अभी शामुएल ये बात शाऊल से कह रहा है जो 3 दिन से अपने गधे को ढूंढ रहा है. अरे boss, you're going to become king. अरे बॉस, तू तो राजा बनने वाला है. क्या बात कर रहा है? I came to search my donkey यार. तू मेरे को राजा बना रहा है. मैं तो मेरे गधे को ढूंढना है, तो क्या बात कर रहा है सैमुएल, तू मुझे राजा बना रहा है. That's the anointing. मेकिंग मी द किंग. That's the anointing. वो अभिषेक है. Amen. Now read verse 21. Go for 21. आइए 21 And वचन पढ़ें. Saul answered and said, am I not a Benjaminite, of smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribes of Benjamin? Why then do you speak like this to me? ओहो. शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी के गोत्रे के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? Amen. We all say, I am a small person, pastor. हम सब कहते हैं पास्टर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. Kingdom treasure is inside you. लेकिन राज्य की धन तेरे अंदर है. Amen. That's what God is saying. Kingdom treasure inside you. It is invisible. Let it come to visible. इसलिए शामुएल उसे कह रहे थे राज्य का धन तेरे अंदर है, वो दिखाई नहीं दे, अदृश्य वो दिखाई Read देगा. what happened after this in 1 Samuel chapter 10, 1 to 6. अभी इसके बाद क्या हुआ? हम पहला सैमुएल का 10वां अध्याय और 6. Then एक वचन में Samuel took पढ़ेंगे. a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, is it not because the Lord has anointed you commander over his किसका? The earth is Lord's, the gold is Lord's, everything that is in the earth is you got it, this one? His inheritance. We are the overseers. तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं है कि यहोवा ने अपना निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है? In verse 20, he's searching for donkey. 20वां वचन में हमने देखा कि गधे को ढूंढ रहा है. In 21, he's saying, I am least person. 21वां वचन में कहता है कि मैं सबसे छोटा कुल में के छोटा से छोटा कुल In का हूँ. 10:1, he's anointed. 10 का अध्याय पहला वचन में देखते हैं अभिषेक किया गया. Right? 10:1, no? है ना? Yes. 10:2, दूसरा वचन, when you have departed from me today, when you depart from this house of God today, you will find जब आज 2 तो मेरे men by पास righteous tomb in the territory of Benjamin at Zilzah, and they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found, and now your father's assay is caring about the donkeys and is worrying about you, saying, what shall I do about my son? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसहा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वह मिली है. और सुन, तेरा पिता गधियों का चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? When the Holy Spirit comes upon you, anointing, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अभिषेक करता you है, will find the lost. तो जो खोए हुए चीज तुम्हें वापस मिलेंगे. That's why we need the Holy Spirit. इसलिए तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. Otherwise, we have problems. नहीं तो हमें प्रॉब्लम. Go to next verse, please. Faster. 3. Then you shall go on forward from there, from the tomb, and come to the Tibernath tree of Tabor. Then there 3 men going up to God at
Bethel will meet you, one carrying 3 young goats, another carrying 3 loaves of bread, another carrying a skin of wine. फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए हुआ होगा. Verse 4 please. And they will greet you and give you 2 loaves of bread, and which you shall receive from their hands. और वह तेरी कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उनके हाथों में से ले लेना. What a direction after the anointing. Verse 5. Fully led by the Spirit. देखो कैसा मार्गदर्शन हो रहा है अभिषेक होने के बाद, पूरे When the पवित्र Holy- आत्मा के द्वारा चलाए जा When the रहे हैं. Holy Spirit anointing comes upon you, you are led by the Spirit, not by the flesh. जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो आप आत्मा में चलोगे, शरीर में नहीं. After that, you shall come to the hill of God. Say with me, Amen. I found the ladder. I found the ladder. The hill of God, where the Philistine परमेश्वर के- garrison is, and it will happen when you come there to the city, that you will meet a group of prophets coming down from the high place with a stringed instruments, guitar, a tambourine, a flute, a harp before them, and they will be prophesying. तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे. Verse 6, very important, mark in your Bible. This is where the secret. 6वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है, अपने बाइबल में उसे अंडरलाइन कीजिए. Then the Spirit of the Lord came. The Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another man. तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा. परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बनना चाहिए. इसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने ऊपर Hallelujah. चाहिए. Amen, amen. Hallelujah. Amen. So you Amen. have to change and you have to become a person filled with the Holy Spirit. You know, then the Spirit of God come upon you, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतर आती you है, will change into another man. आप एक अलग परिवर्तित मनुष्य Sir, बन जाते हो. when the Holy Spirit comes upon you, your entire personality will change. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है, आपका पूरा व्यक्तिगत रूप ही वो When बदल the जाता Spirit है. of God comes upon you, जब परमेश्वर की आत्मा पर उतर आती sick है, man will turn into healthy man. एक बीमार आदमी स्वस्थ आदमी बन जाता A है. failure man will turn into successful man. एक हारा हुआ व्यक्ति सफल व्यक्ति बन जाता A है. weak man will turn into a strong man. एक कमजोर आदमी बलवंत आदमी A बन जाता poor है. man will turn into a rich man. एक गरीब आदमी अमीर आदमी बन जाता है. Means you will be changed into another man. यानी तो आप अलग आदमी व्यक्ति बन जाओगे. From no man to king, in between the anointing of the Holy Spirit. तो शून्य आदमी से वो राजा बनेगा पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे. Hallelujah. He said, I am nobody. उसने कहा तो मैं कोई भी I am the नहीं. least in the family. मेरे परिवार में सबसे Our छोटा tribe कुल is का a हूँ. small tribe. हमारा तो छोटा सा गोत्र है. Nobody knows us. कोई हमें जानता भी But नहीं. the Spirit of the Lord came upon him. जब लेकिन पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, You will be turned into another man. तब आप एक अलग व्यक्ति बन जाओगे. The purpose of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का होने का मकसद is यही to है, turn you into another person. तो तुम्हें वो परिवर्तित करके एक And अलग I मनुष्य prophesy बनाना and I declare that will happen to you individually in Jesus' मैं name. भविष्यवाणी करता हूँ आप पर और घोषित करता हूँ, आप एक अलग व्यक्ति Come on. हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. Without the Holy Spirit, the disciples were pushed. पवित्र आत्मा के बिना चेले तो को भटाके जैसे कुछ भी उनको जान ही नहीं थी. Jesus could not do anything for 30 years without the Holy Spirit. यीशु मसीह 30 साल के लिए पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर पाए. Jesus has to wait for 30 years for यीशु मसीह को 30 साल के लिए रुकना पड़ा the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्म के One day लिए. he called all the 11 disciples. उन्होंने सब 11 चेलों को बुलाया. Jesus told him यीशु मसीह ने उससे कहा, to be, he told them, I am going to send you to the world.
तो अब मैं तुम्हें अभी इस संसार में भेजने वाला हूँ। Disciples are all fearful. पूरे चेले हम लोग लोग डर गए, नजरत में ठीक है, कहने लगे नहीं हम नजरत में ठीक है, गलीली में ठीक है, गलीली में हम ठीक है, बेतलेहम में ठीक हम है। इधर ही बतलेहम में ठीक है। थोड़ा उधर उधर नाम नहीं आता है बाइबल में, उतना कठिन नाम है ना, वो अपना नाम पे रख के बात करना पड़ता है। सो दीज आर द, हम लोग ओके, वी आर इन द स्मॉल नेशन इजराइल, इट्स ओके। नहीं ये इजराइल में एक छोटे से शहर में हम ठीक है इस शहर के में, Was no bombs in them. कोई Amen. धमाका नहीं है उनमें। For this, us the Lord is saying, ये उसकी पटाखों के लिए प्रभु कह रहे हैं, you are going to take the gospel to the whole world. ये सुसमाचार को तू पूरे जगत में लेकर जाएगा। To whom? These weak disciples. किसको कह रहे हैं? वो Fearful कमजोर disciples. चेलों को जो बाबा। डरे हुए हैं। You know, they are the one who went and hid after Jesus died. वही लोग थे जो यीशु मरने के बाद जाकर कहीं छुप गए थे। Just imagine, all authority in heaven and earth is given to me. I am going to give you, and therefore you go and make disciples, baptize them, teach them, and make them disciples again. तो प्रभु यीशु ने कहा कि सारा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है गया है, तो वही अधिकार मैं तुझे देता हूँ। तो तुम्हें भी जाकर पूरे समाचार पूरे जगत में मेरा सुसमाचार को बांटो और मेरे आज्ञाओं को मानने को लोगों को सिखाओ, अनुसार चलने को सिखाओ, और मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। यप्पा, हम लोग जाते हैं, जीसस नहीं होएगा, हम लोग पूरा दुनिया में पूरे जगत में यीशु नहीं, हम नहीं जा सकते। You know, you're handing over to the fearful, weak disciple the whole world. ये कमजोर ऐसे चेले जो इतने डरपोक है, उसको तू पूरे जगत का बाहर डाल रहा है यीशु। All the world, my पूरे जगत goodness, का वो भी, Jesus, यीशु। all the world. पूरे जगत I का। never left Israel. I never left Galilee. One day also went to another place. मैं गलीली से एक दिन भी बाहर नहीं गया, इजराइल के एक दिन भी बाहर नहीं गया I हूँ। never left Bethlehem. One day also. एक दिन भी मैं बेथलेहम छोड़कर नहीं गया I हूँ। never get out of Israel. One day also. इजराइल से मैं एक दिन भी बाहर नहीं गया हूँ। Now the same question what Mary asked. How can this be? Disciples question. How can this be? मरियम ने जैसे सवाल पूछा, ये कैसे क्यों कर होगा, वही सवाल अभी ये चेले भी पूछ रहे, कैसे How हम कर can सकते? this be? ये कैसे हो सकता है? Go into the world and preach the gospel. पूरे जगत में जा और सुसमाचार सिखा सुना। इसको सुना रहे weak disciple. कमजोर चेलों को, हारे हुए चेलों को। Amen. Listen to this. Luke 24:49. लूका का 24:49। And now I will send the Holy Spirit, just as my Father promised, upon you. But tarry in the city of Jerusalem until you are ended with the power from on high. Wow. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Hallelujah. What the Jesus is saying? I send the promise of my Father upon you. तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पिता ने जो वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, वो मैं तुझे दे But दूंगा। for now, हिलो मत इधर से. Turn to somebody, अभी हिलो मत इधर से. अभी के लिए हिलो मत इधर से। Hallelujah. But tarry in the cities of Jerusalem until you are endued with the power from on high. तो तुम वहीं पर रहो, उसी शहर में रहो जब तक तुम्हें ऊपर से स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाते। And you all know in the upper room they were waiting, right? Tarrying. और आप सब जानते हैं कि ऊपर की कमरे में सब The Bible says the Holy Spirit came upon them like a mighty rushing wind. बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा एक तेज सनसनाहट की हवा, तेज And हवा they के रूप में were उन पर आई। clothed with the power of God from high. और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से ढक गए। Hallelujah. And they changed into another man. और एक अलग व्यक्ति वो बन गए। Galilee क्या? I will go to India. Oh Israel क्या? I will go to other nations of the world and I'm going to preach the gospel because the Holy Spirit has clothed over me and I have changed into a new man. A man who is going to speak with authority, with anointing, with the power of God, preaching the gospel to the nations of the world. तो ये क्या गलीली क्या? मैं पूरे जगत में विश्व में जाऊंगा प्रभु के सामर्थ के साथ, मैं पूरे वचन को सुनाऊंगा और मैं लोगों को प्रभु मिलाऊंगा। I was also very
very scared when people call me to other cities to preach. तो मेरे को भी मुझे भी जब लोग अलग देशों में बुलाते, शहर में जा I बुलाते was थे, मैं also डरता that था। weak pataka. मैं भी एक खूब फूस पटाखा But था। one day the Holy Spirit came upon me. लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया। God said, go into the world. प्रभु ने कहा जगत में तुझे जाना I है। went to the toughest place where the सारे- murderers are there. God did wonders in their मैं lives. ऐसे कठिन जगहों पे गया जहाँ हत्यारे में थे, प्रभु ने वहाँ पे अद्भुत काम One किए। day a man came with a rod to beat me. एक दिन एक व्यक्ति रॉड लेकर आया था मुझे मारने के लिए। Kolar Goldfield, I was young person and 10 people are waiting to beat me in left, center, right. और कोलार गोल्डफील्ड पे जब प्रचार था तो 10 लोग जो है बड़े-बड़े ऊंचे कद के लोग आए थे मुझे मारने के The लिए। Holy Spirit came upon me so powerful. तभी पवित्र आत्मा अपने पूरे सामर्थ पर मुझे I still उतराया। remember my message. Son of Man came to seek and save which was lost. आज भी मुझे वो संदेश याद है। मैं प्रचार करता परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को और भटकों को ढूंढने आया था। There is a person by name Ramesh. You are under the tree. You have lost. You are with the roads. But God's power is touching you. Come and give your life to Jesus. और वहां पर प्रभु का जो है ज्ञान के शब्द निकले। एक लड़का है जिसका नाम है रमेश, तुम अभी उस झाड़ के पीछे पूरे पीछे खड़े हो और आपके हाथ में रॉड है। प्रभु कहता है तू वहीं पर रॉड छोड़कर अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दे और आगे आ जाओ। Holy Spirit came upon him. और पवित्र आत्मा का सामर्थ He उस पर उतर changed into आया another man. और एक परिवर्तित आदमी My बन sister गया। was in the Bible college. मेरी बहन बाइबल कॉलेज I में went to थी। meet her. मैं उसे मिलने गया There is था a guy coming and taking the pictures of mine. I और एक लड़का था वो आकर मेरा फोटो लेने लगा। said, who is this guy? I asked her. मैंने उसे कहा ये लड़का Tell कौन him that है? I'm not a big preacher. मैं बड़ा कहने लगा मैं बड़ा I प्रचारक said, भी नहीं था brother, उस come दिन। here. Why are you taking my picture? मैंने पूछा भाई तू मेरा फोटो I am the क्यों ले least रहा of the least. है? मैं तो छोटे से छोटे He कुल का said, हूँ। do you remember Kolar Goldfield? You called my name. Holy Spirit came upon me. But I was scared to come to the stage. But today I am in the Bible college because of the touch of God in my life. वो कहने लगा आपको याद है उस दिन बाबा कोलार दे रे गोल्डफील्ड में आपने मेरे नाम रमेश करके पुकारा था। मैं वही रमेश हूँ। उस दिन पवित्र आत्मा मुझ पर इतने सामर्थ्य रूप से उतर आया और मैं परिवर्तित और उसी के कारण आज मैं बाइबल कॉलेज में यहाँ सीखने के लिए When the आया हूँ। Holy Spirit is there, testimony is there, witnesses are there, then you preach, the power of God will जब manifest. पवित्र आत्मा आपके साथ में है तो आपके जीवनों में गवाहियां होगी, साक्षी होगी और पवित्र आत्मा लोगों को परिवर्तित कर Many देगा। people preach the gospel without power. बहुत लोग है प्रभु का वचन No conviction. बोलते हैं लेकिन कोई सामर्थ नहीं, किसी के अंदर कोई विवेक जागता नहीं।